Professionally, because I used to keep shouting and cutting and saying, "You better come on time tomorrow, and you better not make me wait," and all of that. And he really didn't in this film on many days. Some, of course, he did. So that means, That's just. आज इसने लेट किया. हाँ, वो that's true. I'm sorry. I should. brother, are you unlucky in love? I'm asking you a simple question. What's the scene? Are we seeing Karthik moving into that zone also like this? नहीं. Aadhe ka? देखो. He's blushing, huh? Thank you. His cheeks have Seriously, become thank you. प्यार. Kiara, the both of you, there is a few years, a couple of years. कितने big भूल भुलैया को 2 साल हो गए ना? एक साल. Last सिर्फ year. सिर्फ एक. Huge. वो चलती इतनी जा रही है कि. Wow, I love it. It's only 1 year. You know, when you actually see, when you meet again, when actors meet again and they have a hit behind them. लेकिन हम शूट बहुत टाइम से कर रहे थे वो फिल्म. तो वो टाइम है, मतलब काफी टाइम से मिल रहा है. No, but once you know that the film has become a hit, I want to always find out what's the mindset of actors जब वो मिल जाते हैं. You know, it's like when you come to a new set. ये लोग आगे. So there's a little comfort level knowing that they delivered, or you know, वो zone different हुआ आप लोग के साथ में इस फिल्म में? I think we've grown as actors from then to now. एक साल में? एक साल में. Nice. हाँ, एक साल में we've definitely grown professionally, creatively, in many ways. Professionally, because I used to keep shouting and cutting and saying, "You better come on time tomorrow, and you better not make me wait," and all of that. And he really didn't in this film on many days. Some, of course, he did. So that means That's just. आज इसने लेट किया. हाँ, वो that's true. I'm sorry. I should. That is true. That is true. so wait, now I'm going to pro. probe भूल भुलैया So में made you right wait. now we call it even. BB he made you wait. BB, let's not get into the past. Let's look forward in life. But honestly, I feel we've grown because that was a different film. This film required a lot of us in terms of a lot more to surrender into these characters. So I feel that these are also parts and characters very rarely that come your way, especially a love story like this, which everyone's still wondering it's intriguing. Nobody really knows exactly what the hook is right now, and we're not giving out too much because I would like to believe that it's beautifully made in the told in the film. But I feel as actors we got this opportunity to surrender ourselves into these roles, and I don't think I saw him as Karthik, or I don't even think he saw me as Kiara whenever we were working. It was always Sattu Katha. Sir would call us Sattu Katha on set. Outside our vanities, it was written Sattu Katha. So as we would get on set, we were already like we had taken on that character, and that's what it was. I don't, there was never feeling of what has happened in the past or how even our reactions to each other. I would never know what he's going to do. I don't think he would ever know how I would react in these scenes. And that's why I feel we've grown as actors. कभी-कभी आप काम करते हैं किसी के साथ और आपको पता है कि हाँ ये शायद ऐसे करेंगे या फिर उनका रिएक्शन ऐसे आएगा. But इस फिल्म में मुझे नहीं लगा कि दोनों की तरफ से we ever had a reaction that we would already know कि हाँ ये होने वाला है. कभी नहीं पता था कि क्या होने वाला है. We would just let it flow, and that's why it's just been such a magical experience, truly. जो भी विजन आप देख रहे हो ना, ये मेरे अकेले की नहीं है. ये राइटर से लेके, एक्टर से लेके, प्रोड्यूसर से लेके सबकी है. क्योंकि एक बहुत अच्छी बात हम लोगों में थी कि हम लोग एक दूसरे से क्रिएटिव झगड़े करते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है. ये बहुत अच्छा लाइन एक्चुअली बहुत झगड़े हो रहे थे. ज्यादा जरूरी है. नहीं, क्योंकि उसी में से निकलती है चीजें. वही सच बोलने के पहले. नहीं, क्योंकि ना आमतौर पे लोग झगड़ों से दूर भागते हैं ना. नहीं करते, हम लोग करते हैं. तो हमें अच्छा लगता है. क्रिएटिव झगड़ालू सबसे ज्यादा कौन है ये बता दो. हाँ, अभी आपने बोल दिया सर. अभी बोल दिया आपने. हमारा राइटर जो बैठा है ना सामने. नहीं, क्योंकि ना वही है कि जैसे मैंने कहा ना कि शारीन पूरा टाइम थी. साजिद सर हमेशा पूछते थे क्या हो रहा है, मुझे बताओ क्या हो रहा है. हम लोग तो थे ही, करंट सेट पे था, तो हर छोटे शब्द के लिए, हर छोटी लाइन के लिए से लेके बड़े मोनोलॉग तक ना वो डटा रहा वहाँ पे कि नहीं ये लाइन ऐसे क्यों बोलनी है. या मेरा डीओपी जो था बोस है, रजत दा, जिन्होंने सेट डिजाइन किए इतने बड़े, वो हमेशा कि आपको क्या चाहिए बोलो, हम लोग लाके देते हैं. प्रॉब्लम मत बताओ, आप हम बताओ कि क्या चाहिए. तो ये सारी चीजें ना इस फिल्म में जाती है. और फिर जब ऐसी कास्ट जब वो परफॉर्म करती है, डांस करती है, जो गजराज सर है, सुप्रिया मैम है, सिद्धार्थ रंड्रिया सर है, शिखा है, जब ये सारे लोग एक साथ आ जाते हैं ना स्क्रीन पे, तो तब वो स्केल बढ़ती है.
वो सिर्फ कैमरा रखने से या लाइटिंग से या अच्छे डायलॉग से नहीं बढ़ती, ये सब एक साथ आ जाता है, उसके बाद ही ये स्केल बढ़ती है, ये मुझे लगता है। ये जो सुपर हिट जोड़ी है जो एक्सपेक्ट करेंगे इसको 200 टच नहीं हुआ, सो दिस अ फेलियर, यू नो दैट नाउ सचिन तेंदुलकर है ना, यू हैव टू 200 crores if it makes, I said no. अगर 199 भी आ गया so it's 99 bro. अभी क्यों इतना सोचवा रहे हो? और But मैं हाँ, अभी साथ but this kind of pressure can build up once in a while, but how you seem to be handling it very well. आई थिंक ये कॉन्शियस डिसीजन एक लिया गया था इस फिल्म के साथ, बिकॉज काफ़ी ऐसे प्रमोशंस हो रहे हैं जो आई थिंक ऑडियंस, आई डोंट नो, मतलब हम गलत भी हो सकते हैं सही भी, बट वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस जहाँ पे ये एक मार्केटिंग टीम का और फिल्म टीम का एक डिसीजन था जिसमें हमने ये सोच लिया था कि अभी सिर्फ कंटेंट पे कंटेंट को आगे लाते हैं और फिर धीरे धीरे लास्ट वीक तक हम लोग शायद से वो प्रमोशनल कैंपेन चालू करेंगे. वी वोंट गो इन, एंड दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ. दिस इज द फर्स्ट इवेंट, मार्केटिंग एक्चुअल इवेंट जो हमने पहली बार किया, और आज पहली बार बड़े पर्दे पे आपको सारे गाने जो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और जो अनरिलीज्ड है वो अभी पहली बार दिखा है. तो एक कॉन्शियस डिसीजन था, ये भी बहुत सोच सोच के ही आया कि क्योंकि भूल भुलैया में तो छतों पे चढ़ चढ़ के प्रमोट किया था, उससे पहले भी ऐसे ही किया है. लेकिन आई थिंक कई बार चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कई फिल्मों के साथ सिमिलर मार्केटिंग कैंपेन नहीं जाती है. आई थिंक सत्यप्रेम की कथा बहुत ही प्योर फिल्म है. आपने देखा होगा 11/11 हम प्योरिटी की बात करते रहते हैं, वो मेक अ विश वाला एक मोमेंट होता है 11/11, तो उसी टाइम पे हम सब गाने एसेट्स सब कुछ उसी टाइम लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्योरिटी इन दिस फिल्म. And That's what 11/11 is all the time. My friends keep saying 11/11 make a wish, and I keep asking why. I mean it's pure, yeah. So अच्छा, ऐसा है क्या? and yeah, Must do it more often then. तो I think yeah. Yeah. तो 11, लेकिन आज एक्चुअली हमने 11/11 पे नहीं डाला क्योंकि हमें लगा कि हम लोग लेट हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा. तो let's not get into it. तो this is the only asset जो उस टाइम पे लॉन्च नहीं किया. बट या सो ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मार्केटिंग कैंपेन थोड़ा एक फिल्म के हिसाब से चेंज करेंगे. एंड आई थिंक इट्स वर्किंग. सीपिन हो रहा है, लोगों को आज के बाद या जो भी एसेट्स हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं. एंड 29 जून No, 100%. का वेट कर रहे हैं. This lane would not be full या अगर 3 हफ्ते से कर रहे होते. You अगर understand हम this 3 also? हफ्ते से रोज कर रहे होते तो Absolutely. आपको ही मजा आना बंद हो जाता. Correct. तो आज नया कुछ लग रहा है. Before I wrap up, Karthik brother, you're being surrounded, पूरी इंडस्ट्री जो बहुत बढ़िया कर रही है और सब लोग शादियां भी कर रहे हैं. आपकी लाइफ में आप खुद अपने इंस्टाग्राम पर जब बात करते रहते हो, पूरी दुनिया, people love you, all the girls here also love you. Brother, are you unlucky in love? I'm asking you a simple question. What's the scene? Are we seeing Karthik moving into that zone also like this? अरे देखा? देखो. He's blushing, huh? Thank you. His cheeks have Seriously, become thank you. प्यार प्यार कितना भी मिले हमेशा कम ही लगता है. सो आई थिंक वो वाली फीलिंग है. So आप lucky unlucky दोनों is it? हाँ नहीं हाँ मतलब. All right, ladies and gentlemen, thank you so much. We'll do a photo op right now. Just take all the mics. 1 second. Huh?